Hello students, Jai Hind, Vande Mataram. Once again, welcome back to your class Ravi Sarji Maths, the easier and better way to learn the concepts of mathematics. Students, in our today video lecture, we are going to solve the complete paper solution of unit test. Students, as you know that previous month we have conducted unit exam of real number and probability of standard 10. So students, first of all we will see the question paper and we will discuss about all the questions over here. Students, this question paper is about 20 marks and all these questions are distributed in different sections. In very first questions, the question is as do as directed. Students, in these types of questions, the multiple types of questions, you can see that in the first question, if GCF, students, here GCF means greatest common factor, which is equal to HCF, highest common factor, or GCD, greatest common divisor. All these are similar words or similar meaning. Students, here in GCF of 25 and 15 is equal to 4x plus 1, you will have to find out x. Okay, in second question, LCM of two numbers is double. LCM of two number is double the greater number. दो नंबर का जो LCM है वो ग्रेटर नंबर्स के डबल है. एंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर नंबर एंड GCF, और इस स्मॉलर नंबर और GCF के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है. सो व्हाट विल बी द स्मॉलर नंबर? सो स्मॉलर नंबर क्या होगा? इन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. अगर फॉल्स है तो उसको रिराइट करके आपको ट्रू करेक्ट करना है. जेई Carriage of Britain scored 5,067 heads in 10,000 toss of coins. The experimental probability of getting head in this case was 0.5061. तो जे कैरिज हैं जिन्होंने 10,000 टाइम्स तक कॉइन टॉस किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.567 है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट मैचिंग. हियर इन सेक्शन A 2 questions are given. In section B more than 2 answers are given. The probability of certain events you will have to match over here with section B, and the probability of an impossible event. So what will be the probability of impossible event? Here you will have to match once again. Next is solve the following. Each questions carries 2 marks. ये सारे 2 marks के हैं और ये टोटल 10 marks के हैं. It is given that a group of 3 students का ग्रुप है. The probability that 2 students have the same birthday, और 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम है, is 0.08 है. What is the probability that the student not having the same birthday? तो जिन स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 7 है द यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव टू फाइंड आउट HCF. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225. स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी डू द डिवीजन प्रोसेस step by step and finally we get the HCF until we are not getting the remainder 0. Okay students, so now moving to the question number 8. The question number 8, 5 cards हैं, उसके अंदर 10 है, जैक है, क्वीन, किंग एंड एस है ऑफ डायमंड्स के, राइट, are well shuffled with their face downwards, right. One card is picked up. आपको रेंडमली यहाँ पे एक कोई कार्ड पिकअप करना है. You will have to find the probability. What is the probability that the card is the queen? कार्ड आप रिसीव कर रहे हो, क्वीन होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. इन सेकेंड वन, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन, अगर आप
क्वीन को निकाल लेते हो और उसको साइड में रख दो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड पिक्ड अप इज़ एन एस। जो आप कार्ड दूसरा कार्ड निकालोगे वो एस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 9 you will have to prove that 3 plus 2 root 7 as an irrational। 3 plus 2 root 7 irrational है, तो ऑब्वियसली आप 2-3 मेथड से इसको कर सकते हो। पहले तो आप बता सकते हो कि 3 इज़ रैशनल नंबर, 2 इज़ रैशनल नंबर, बट रूट 7 इज़ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हो। और में है क्वेश्चन नंबर 9 का, प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल। यू विल हैव टू प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। अर्लियर वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स। इन क्वेश्चन नंबर 10, अ डाई इज़ थ्रोन वंस। अगर एक डाई को थ्रो करते हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एंड नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर्स जो आपको रिसीव होंगे फेसेस पे वो 2 और 6 के बीच में आए। नेक्स्ट इज़ सोल्व द फॉलोइंग। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स का है। दिस इज़ टोटल 6 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस। कन्वर्ट द रैशनल नंबर इन 1.325 बार इन P/Q फॉर्म। आपको इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th में, ऑलरेडी आपने स्टडी कर लिया है। इन क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है, विच आर द नंबर्ड 1 to 90, और सारे डिस्क पे 1 2 3 4 अप टू 90 तक मार्किंग किया हुआ है। इफ़ वन डाई इज़ एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर कोई भी एक डिस्क आप रैंडमली रिसीव करते हो, तो फर्स्ट है अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर होगा डिस्क पे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सेकेंड है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड थर्ड है नंबर डिविजिबल 5, और आप जो डिस्क ओपन करोगे वो डिस्क पे जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शनल क्वेश्चन है, 2 डाइसेस, 2 डाइस को, एक ब्लू कलर का है और ग्रे कलर का है, एक ही बार आपको थ्रो कर रहे हो। राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स आपको राइट करने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपियरिंग ऑन द टॉप डाइस। आप दोनों डाइस थ्रो करने के बाद दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर आ सकता है या कुछ भी नंबर आ सकता है, तो दोनों डाइस के नंबर्स को ऐड करने पर 8 आए, उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, या 12 या 12 से कम आए और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड फाइनली इन क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन करना है कि 7 into 11 into 13 + 30 ये कंपोजिट नंबर है, और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। पहले तो इसको सबको आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं, कोई भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स आता है, दोज आर कंपोजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, before starting the solution, if you are new to this channel, just subscribe and don't forget to hit the bell icon. Okay, the first question is already we have discussed GCF जो है वो 25 और 15 है, तो 4x + 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 × 5 होगा, और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 होगा। तो 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, सो GCF ऑफ 25 एंड 15 क्या है, 4x + 1 है। सो कॉमन जो है वो GCF इज़ 5, 4x + 1। सो वी कैन राइट 4x + 1 इज इक्वल टू 5। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट x, सो 4x इज इक्वल टू 5 - 1 हो जाएगा। सो 4x इज इक्वल टू 4, सो वी वॉन्ट टू एलिमिनेट x, सो x इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, LCM of 2 given number is double than the greater number and difference of GCF is 4 smaller number. So आपको यहाँ पे कंसिडर करना है 2 numbers are A and B, where A is greater than B, right? So LCM of A and B as per the question twice of greater number, right? So difference of smaller number and GCF क्या है, 4 है, right?
सो GCF को उस साइड करो, 4 को इस साइड सेंड करो. सो B - 4 इज इक्वल टू GCF ऑफ A एंड B. GCF A एंड B इज इक्वल टू B - 4. वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग LCM and GCF, LCM into GCF is equal to A into B. So what is the value of LCM? LCM की वैल्यू 2A है और GCF ऑफ A एंड B इसकी वैल्यू क्या है? B - 4 है, इज इक्वल टू A B. A कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर गेटिंग 2B - 4 इज इक्वल टू B. सो 2B - 8 इज इक्वल टू B. 2B इज इक्वल टू 8. सो B इज इक्वल टू फाइनली वी आर गेटिंग 8 बिकॉज B यहाँ पे स्मॉलर नंबर है, दैट्स वाई स्मॉलर नंबर इज 8. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3, 5067 टाइम हेड आ रहा है 10,000 टाइम कॉइन को टॉस करने पर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 0.5067 है. या आपको करेक्ट है या नहीं ये बताना है. सो लेट अस कंसीडर A गेटिंग हेड. सो कंसीडर P ऑफ A is the probability of getting head, right? What is P of A is the probability of getting head. So M जो होगा फेवरेबल इवेंट्स आपके कितने टाइम आया? 5067 टाइम और टोटल आउटकम्स क्या है? 10,000. सो एज पर द डेफिनेशन P of M by N 5067 डिवाइड बाई 10,000. सो वी आर गेटिंग 0.567. सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके. In question number 4, a baby is born is a girl, boy or girl, right? So आपको बताना है कि it is not a equally likely outcomes. So students, this is equally likely event होगा because here it is not sure the baby will born boys or girl. जो baby होगी वो बॉयज़ आर गर्ल होगी बिकॉज नो वन नोज़ दैट. सो देयर इज़ 50-50 चांस. अगर कोई भी आउटकम्स में 50-50 चांस होता है सो दैट इवेंट इज़ लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है, राइट. सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स. सो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स जो होती है वो ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट? 1 होता है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी. सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन मैच प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, इट मीन्स 5 का D आएगा और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है, मीन्स C आएगी, राइट. Okay, now moving to the question number 6 over here. It is given that the group of 3 students probability of 2 students जो है वो 0.08 है. So बाकी स्टूडेंट्स की probability जिसका बर्थडे सेम नहीं वो फाइंड करना है. So P of A कंसीडर कर लो probability of the student 2 students, right? The probability of 2 students having same birthday, it is already known. और ये जो वैल्यू है वो कितने हैं? 0.008 है, राइट. सो वी नो दैट P ऑफ, वी वांट टू फाइंड आउट P ऑफ A, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट द सेम बर्थडे. उन बच्चों की फाइंड करनी जिसकी बर्थडे सेम नहीं है. सो वी नो दैट P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज़ वॉट? 1. सो P ऑफ A की वैल्यू क्या है? 0.08. अब P ऑफ A बार फाइंड करना है. सो 1 कैन बी रिटन 1.00. सो P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1.00 माइनस 0.008. सो 1 में से 0.008 सब्ट्रैक्ट करो. सो व्हाट यू आर गेटिंग? you are getting 0.992. so here it has been clear that the probability that the student have not same birthday is 0.992, right. Okay, now moving to the question number 7. Using Euclid division algorithm we have to find out HCF of 135 and 225. Students, here you will have to consider 2 digit A greater number or B smaller number. So we know that A is equal to BQ plus R होता है. So as per the Euclid division algorithm, so first of all 225 को 135 से डिवाइड करो, 1 टाइम पॉसिबल होगा. सो वी आर गेटिंग 90 एज ए रिमाइंडर. अब 90 इससे 135 को डिवाइड करो, 1 टाइम होगा. सो वी आर गेटिंग सिमिलरली कंटिन्यू टिल वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0. सो 225 135 से डिवाइड किया 1 टाइम और रिमाइंडर क्या आया था अपना?
90, राइट। सिमिलरली 135 को ए कंसीडर करना है और 90 से डिवाइड करो, सो वन टाइम इट विल गोज वन टाइम, सो वी आर गेटिंग रिमाइंडर 45। नाउ 90 को 45 से डिवाइड करो, इट गोज 2 टाइम एंड फाइनली वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0। सो प्रीवियस रिमाइंडर ऑफ 0 इज़ द HCF ऑफ 2 इंटीजर। सो प्रीवियस रिमाइंडर 0 का पहले वाला रिमाइंडर 45 है। ओके, 5 कार्ड्स हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। 5 कार्ड्स में से आपको कार्ड्स को पिकअप करना है और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ क्वीन, और ये कार्ड जो होगा क्वीन होगा बिकॉज 10 है, जैक है, किंग है, एस है ऑफ डायमंड के ये 5 अलग अलग कार्ड्स हैं। सो एज वी कैन मार्क ओवर हियर 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, राइट। देयर आर 5 कार्ड्स। सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो n होगा वो क्या होगा, 5 होगा, राइट स्टूडेंट्स। व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ क्वीन, द कार्ड इज़ क्वीन। सो यहाँ पे कितने क्वीन कार्ड्स हैं, ओबियसली 1 है, और टोटल काउंटिंग करो कितने कार्ड्स हुए, 5 हुए। सो P ऑफ A m/n, सो 1/5। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर एक कार्ड को सेकेंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, अगर एक कार्ड को आप निकाल ले रहे हो और उसको साइड में रख रहे हो तो रिमेनिंग आपके पास 4 कार्ड होंगे। सो उसकी आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस कार्ड में से आपको कार्ड को रिसीव करने पर एस फाइंड आउट हो, राइट। सिमिलर 10 जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है, राइट। आप क्वीन को निकाल कर साइड में रखो, सो यू हैविंग ओनली 4 कार्ड्स, आपके पास 4 कार्ड्स आएंगे। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, सेकेंड कार्ड इज़ पिक्ड अप इज़ एन एस, राइट। सो एस एक ही है और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 4 हैं। सो P ऑफ B क्या होगा, m/n, सो 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड इज़ 1/4। Okay, now moving to the question number 9, we have to prove that 3 plus 2 root 7 is an irrational number, right? So हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे। हम इसको कंसीडर करेंगे कि द गिवन नंबर इज़ रेशनल। सो लेट अस कंसीडर 3 plus 2 root 7 इज़ एन इरेशनल नंबर। 3 plus 2 root 7 क्या है, इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर फॉर्म ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, A/B, राइट। नाउ 3 तो रेशनल है, उसको राइट साइड मूव करो। सो 2 root 7 A/B - 3, सो 2 रेशनल है, सो 2 को डिनोमिनेटर में सेंड करो। सो A/2B - 3/2 इज़ ए रेशनल नंबर। बट वी नो दैट root 7 इज़ इरेशनल नंबर, राइट, बिकॉज हमको पता ही है कि रूट 7 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो A/2B - 3/2 ये भी रेशनल नहीं हो सकता। सो हमारा जो सपोजिशन है वो इनकरेक्ट है, हमने जो कंसीडर किया है वो इनकरेक्ट है। सो 3 plus 2 root 7 रेशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल ही होगा। नेक्स्ट इज़ हमको प्रूफ करना है रूट 5 इज़ एन इरेशनल। सेम वे हम इसको भी प्रूफ करेंगे कि रूट 5 जो है वो रेशनल है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट फाइंड करना है, इरेशनल करना है, तो A/B के फॉर्म में राइट करो और उसका HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर HCF 1 नहीं आएगा सो कंसिडरेशन क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। सो रूट 5 इज इक्वल टू A/B एंड HCF इज इक्वल टू 1। ना अब क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग करना है। रूट 5 स्क्वायर, सो A/B स्क्वायर, सो रूट 5 स्क्वायर होगा 5, A स्क्वायर B स्क्वायर, सो 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, सो A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। ओके, सो A स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू B स्क्वायर। इट मीन्स 5 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। Similarly, we can write over here A divided 5 is equal to another integer C. So A is equal to 5C. Now squaring A square is equal to 5C square. A square की वैल्यू 5B square है. So we can write 5B square 25C, so 5 से 25 cancel. So B square is equal to 5C square. B square upon 5 is equal to C square. So B जो है 5 है जो B को डिवाइड करेगा. इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 से आपको क्लियर हो रहा है कि जो कॉमन पॉइंट है वो 5 मिल रहा है, HCF 1 नहीं आ रहा है। सो आवर सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है। हमने जो कंसिडरेशन किया है कि ये रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है। सो रूट 5 इरेशनल नंबर ही होगा, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में डाइस इज़ थ्रोन वंस। एक डाइस को एक बार थ्रो करते हो सो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 तक आपको मिल सकता है। आपको फाइंड क्या करना है इवेंट में,
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, राइट। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे? डाइस को थ्रो कर, सो 2 3 5 और टोटल जो इवेंट है वो कितने हैं? 6 होंगे, राइट। सो पी ऑफ इवन विल बी वॉट? m by n. m is favorable event, n is total number of events, so we are getting 1/2. Okay, second, a number lies between 2 and 6, so E2 number lies between 2 and 6. 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? सो 4 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा। सो m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6, सो p ऑफ E2 इज इक्वल टू m by n, 3/6, 1/2। ओके, कन्वर्ट द रेशनल नंबर 1.325 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इट मीन्स 3 to 5 जो है वो इन्फानाइट टाइम तक रिकर हो रहा है। इट मीन्स यू कैन राइट वॉट, लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 1.325 बार, सो वी कैन राइट 1.325 इक्वेशन 1। ओके, यहाँ 3 to 5 3 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही है, सो मल्टीप्लाइंग बाई 1000, राइट। सो 1000x 1000 in the bracket 1.325 continuing 1000x, so डेसिमल है 3 डिजिट पे रिप्लेस होगा 1325.325325, राइट। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, x को एलिमिनेट करना है आपको, राइट। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 1000x इज इक्वल टू 1325.325325 माइनस द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है वो राइट करना है, राइट स्टूडेंट। सो 1000 में से x रिमूव करो, सो 999x एंड वी आर गेटिंग 1325। सो x इज इक्वल टू 1325 अपॉन 999 विच इज इक्वल टू 1.325 बार, राइट। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। एक बॉक्स में 90 डिस्क है और वो दैट आर मार्क्ड विद 1 to 90, उसमें से कोई भी एक आपको डिस्क लेना है और 2 डिजिट्स नंबर आए, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर E1, 2 डिजिट नंबर ऑन द डिस्क। आप कोई भी डिस्क ले रहे हो उसके ऊपर 2 डिजिट नंबर हो, तो 2 डिजिट नंबर ऑब्वियसली 10 से स्टार्ट होगा और एंड कितना होगा? 90। अब 10 को छोड़कर 11 से अब 90 अगर काउंट करते हो तो आपके पास 80 नंबर्स आएंगे और 10 को इंक्लूड करोगे तो 1 ऐड हो जाएगा, सो 81 आएगा, राइट। और n की वैल्यू कितनी होगी? 1 से लेकर 90 तो 90 होगा, सो p ऑफ E1 विल बी m by n। सो m की वैल्यू 81 और n की वैल्यू 90, सो कैंसलेशन करो, सो वी आर गेटिंग व्हाट? 0.9। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है आपका 90 से कम। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे 90 से कम? 1 भी होगा क्योंकि, राइट, 1 का 1 स्क्वायर करोगे, 2 का 4 होगा, 9 होगा बिकॉज ये 3 का स्क्वायर है, 16 होगा, 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 64 एंड 81। सो टोटल्स कितने हो रहे हैं? 9 आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? 90। सो p ऑफ E2 इज इक्वल टू m by n। m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 90, सो वी आर गेटिंग 1/10, सो 0.1। E3 इवेंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर डिविजिबल बाई 5, जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 हो, तो 5 से डिविजिबल हो 5 होगा, 10 आएगा, राइट, 15 आएगा एंड कंटिन्यू अप टू कहाँ तक कंटिन्यू होगा? 85 और 90 तक, राइट, 85 एंड 90। सो ऑब्वियसली m की जो वैल्यू होगी आप 5 से 50 तक करोगे 10 नंबर आएंगे और 55 से वहाँ तक 90 तक करो सो 8 आएंगे, सो 18 और टोटल कितने डिस्क है? 90। सो कैंसलेशन करो 1/5 बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शनल क्वेश्चन इज देयर। 2 डिस्क है, 2 डाइसेस है, उसको एक साथ आपको रोल करने हैं और दोनों डाइस पर के नंबर जो होने चाहिए ऐड करने पर 8 आना चाहिए और सेकंड जो है लेस देन और इक्वल टू 12, राइट, 12 या 12 से कम, राइट। सो इवेंट जो होगा 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4, सिमिलरली 2 1 2 2 अप टू 2 6 3 1 3 2 अप टू कंटिन्यू करोगे तो 3 6। सिमिलरली एक पे 4 1 4 2 4 3 4, ये सारे जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द नंबर्स
विच अकर्स ऑन द फेसेस ऑफ द डाइस, एक अलग, बिकॉज सेम भी आ सकता है अलग अलग, सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स ऑन द फेसेस ऑफ डाइस, ये जो है वो डाइस पे नंबर्स आ सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सो टोटल आप काउंट करोगे तो 36 आउटकम्स आ रहे हैं। सम जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए, मतलब दोनों डाइस के फेसेस पे जो नंबर होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। तो 8 कौन कौन से पेयर्स आप लोगे, तो एडिशन करने पर 8 होना चाहिए। ओके, लेट अस चेक ओवर हियर। अब चेक कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से पेयर्स को ऐड करने पर, जैसे 2 6 है तो 8 आएगा, 3 5 है तो 8 आएगा, 4 और 4 का पेयर 8 आएगा, 5 और 3 का पेयर 8 आएगा, 6 और 2 का पेयर। सो कितने नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो स्टूडेंट्स कितने नंबर्स हो रहे हैं वो यहाँ पे हर एक लाइन में वापस एक बार रीचेक कर लो। द पेयर्स हैविंग नंबर्स सम शुड बी 8, सो m इज इक्वल टू 5 हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। सो p ऑफ E1 विल बी व्हाट, m बाई n। सो m की जो वैल्यू है वो 5 है एंड द वैल्यू ऑफ n जो है वो 36 है। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2, लेस देन और इक्वल टू 12, दोनों नंबर ऐड करो, 12 हो या 12 से कम। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले लो, एडिशन करने पे वो 12 से कम ही आएगा, और एक ऐसा नंबर है 6 + 6 वो 12 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो 12 से ज़्यादा हो, सारे नंबर 12 होंगे या 12 से कम। सो टोटल आउटकम्स 36 होगा और फेवरेबल इवेंट भी 36 होगा। सो 36 / 36 1। सो दिस इज़ श्योर इवेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। आपको एक्सप्लेन करने हैं कि जो फैक्टर्स हैं आर कंपोजिट नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो 7 × 11 into 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus are composite numbers. Okay, so here 13 पहले आप कॉमन कर लो, so we are getting 7 × 11 + 1, 13 कॉमन करने के बाद 7 × 11 77, so 13 + 7 × 78, सो मल्टीप्लाई करने पर 1014। अब 1014 को फैक्टराइज करो, अब 13 ऑलरेडी फैक्टराइज है, सो 78 को फैक्टराइज करो तो 13 × 3 × 2। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट कोई भी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन मोर देन 2 हो, दोज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, राइट स्टूडेंट्स। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स, द फैक्टर ऑफ द any integer more than 2 are known as composite number, therefore the 7 × 11 × 13 + 13 क्या होगा, composite number होगा। Similarly 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 we will have to prove this is composite number। okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 जो है वो कॉमन टर्म आएगा, so 5 taking as a common, so 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, right। So multiplying all these factors we are getting 1008 + 1, so we are getting 1009, multiplying by 5 we are getting 5045। so 5 को सेपरेटेड रहने दो एंड 1009 ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है, इंटू 1। सो हियर वी आर गेटिंग 5 × 1009 × 1, सो वी आर अगेन गेटिंग मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। सो द गिवन expression is also a composite number. Hope students you have understood this video lesson. Thank you so much.